Okay, hi students. This is maths class for 7th. Last class we completed till question number 10th. है ना? We will start off with question number 11th. Question number 11 says, express each of the following rational numbers into standard form. Standard form simply means the simplest form, सबसे छोटा form. Question number 11, number 1. Question number 1 says 68 by -120. तो इसको बस यू हैव टू कट टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. ठीक है, लेट्स ट्राई विथ 2. ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8. पुट अ माइनस साइन बिकॉज यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 विथ अ नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव नंबर टू गेट -120. 2 6 ज़ा 12, 0. 2, that means 2 into 60 is equal to -120. Again try to cut it with 2. 2 1 are 2, 3 minus 2 is 1. 1 got carried in front of 4, it became 14. 2 7 are 14, at minus, and 230 is a 60. That's it. That's the simplest form, and this is the answer. That's it. You have to convert each number into its simplest form. I will do one more. I'll do question number 2. Question number 2 says, okay, 234 by -468. I can see it's a bigger number, quite bigger, at least bigger than that of this one, both numerator and denominator. But if you look closely, this is 234, and the denominator are the numbers in the denominator are 468. 234, 468. Did you notice anything? The numbers on the denominator, the numbers that you have as a numerator are doubled in the denominator, है ना? If you do a little rough work right here, 4 2 is 8, 2 3 is 6, 2 2 is 4, 468. So what you can do, that means 234 into 2 is 468, है ना? 234 into 1 is 234. 234 into, put the minus sign, do not forget to do it, into 2 is -468. That's it. So we did not have to do the long calculation by keep cutting them with one single number, है ना? We can simply directly cut it from the numerator from the denominator. You have to notice these things. ठीक है? Okay, we will do question number 3, 4, 5 and 6 as your homework. Question number 12 says, which of the following pairs of rational number are equivalent? This is almost as same as question number 8. ठीक है? How do we find next 3 equivalent numbers? We multiply it with 2, 3 and 4. ठीक है ना? That's in the same manner we have to find whether, question number 12 says, you have to find whether these two are equivalent or not. Numbers are 3 by 12 and -1 by 4. Okay, but this time we have to cut it and check whether it results in -1 by 4 or not. Let's cut 3 by 12. 3 1s are 3, 3 4s are 12. So it is -1 by 4. But the other number is -1 by 4. That means the numerator of this number is in negative. We cut this number and we got 1 by 4 as our result. But they are still not equal because the numerator of other number is in negative form. So this one is not equal. So you can write not equal. Number 2. Let's try number 2. Okay, here in question number 8 you have to find by multiplying it. Here you have already been given two numbers. You just have to find whether they are equal or not. Okay, -5 by 7, -15 by 21. Okay, which one is the greater one? This one is something we can cut, right? This one is already in its simplest form, so we will cut -15 by 21. Okay, 3, put the minus sign. 3 5s are 15, 3 7s are 21,
when we cut this thing we got minus 5 by 7, the other number was minus 5 by 7. So yes, this one is equal, है ना, is equal. You can mention it. ठीक है, you just have to cut the number which you can cut. We did not cut because this is already in its simplest form, but this is something that we could cut, so that is why we did it. ठीक है, we will try question number 3, 4, 5, 6 at your home. ठीक है, just have to cut with one number. I have taught you how to cut, right? If you have any doubt, you can simply ask me. You can text me. ठीक है, find x. ठीक है, you have to find x. Now, before we continue, ठीक है, I have taught you how fraction works when two fraction are on two sides. ठीक है, when two fraction are on either side of a equal to. So this is an equal to. Suppose 2 by 2 and 3 by 2 are equal. They are equal actually. See, 2 by 2 is equal to 1 by 1 and 3 by 3 is equal to 1 by 1. So they are actually equals. 2 by 2 is equal to 3 by 3. How this will work? When this will get transferred on this side, it will get multiplied by the numerator. ठीक है, and if 2 gets transferred on the other side, 2 would get multiplied with the numerator of this fraction. इसका डिनोमिनेटर इधर जाता है तो इसका इससे मल्टीप्लाई होता है, एंड ये उस साइड जाता है तो इधर मल्टीप्लाई होता है. बट अगर दोनों एक ही बार में जाते हैं तो क्या होगा? 2 by 2 इक्वल टू 3 by 3. हाउ विल दैट चेंज? 3 into 2 इज इक्वल टू, ये इधर गया, ये इधर आ गया, 3 into 2. ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया. ठीक है, डिनोमिनेटर बचा नहीं. 3 to the 6, 3 to the 6. सो यस, ये इक्वल है. ठीक है, बट इंस्टेड ऑफ नंबर, इफ देर इज एन अल्फाबेट गिवन टू यू, फ्रैक्शन में गिवन है एक्स, है ना. क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड एक्स. Find x. Okay. Question number 1 says 3 by 7 equal to x by 42. 3 by 7 equal to x by 42. So what we can do, इसमें हमको ढूंढना है कि x का वैल्यू क्या है. तो x का वैल्यू ढूंढने के लिए हमको इक्वल के एक साइड x को आइसोलेट करना पड़ेगा, अकेला करना पड़ेगा, तभी तो हमको पता चलेगा कि x इक्वल टू ये. तो हम क्या करते थे, ये इधर जाता है तो इससे मल्टीप्लाई होता है, और ये इधर जाता है तो इससे मल्टीप्लाई होता है. ठीक है, तो हमको तो सिर्फ x का वैल्यू ढूंढने बोला है, सिर्फ x इक्वल टू क्या है. तो हम क्या करेंगे, वी विल ट्रांसफर 42 दिस साइड और x को उधर ही छोड़ देंगे, उससे हमको x का वैल्यू मिल जाएगा. कैसे, देखो, 3 by 7 इक्वल टू x, 42 ट्रांसफर हो गया उधर, 42 है ना, यहाँ से इधर ट्रांसफर हो गया. ठीक है, सो x इक्वल टू 42, इसमें ध्यान मत दो. ठीक है, x इक्वल टू 42 इंटू 3. 42 कैसे आया, यहाँ का डिनोमिनेटर इधर जाके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया. 42 इंटू 3 by 7. अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो x का वैल्यू हमको निकल जाएगा. चलो x को इधर ही कर देते हैं, एक ही बात. ठीक है ना, दोनों का मतलब चाहे उधर हो इधर हो एक ही बात है कि नहीं. 2 इक्वल टू 2 या फिर 2 इक्वल टू 2 एक ही बात है. कौन सा किसके साइड में, इक्वल टू होता है. ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने से पहले सिंपली कट इट. व्हेन जब ऐसा होता है ना, इसके नीचे 1 रखो. और मैंने क्या कहा था, जब दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है हम क्रॉस काट सकते हैं, ऊपर नीचे और क्रॉस. 3 तो 7 से कटेगा नहीं, 42 1 से कटेगा तो 42 ही आएगा, पर हम ऐसे भी काट सकते हैं. 7 1 जा 7, 7 6 जा 42. तो x इक्वल टू 6 by 1 इंटू 3 by 1. तो 1 रहे ना रहे एक ही बात है. 6 3 जा 18. दैट्स इट. x इज इक्वल टू 18. आई विल डू वन मोर. ठीक है, that's how your doubt will get cleared if you have anyone. I will do question number 4 for you.
question number 4. If you have then if you get any doubt, it will get cleared by x equal to -4. ठीक है, क्या करेंगे इसको 32/x तो -4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं. ऑलवेज रिमेंबर इसमें व्हेन यू हैव फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन मतलब एक नंबर एक दूसरे, ये ऊपर वाला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड हो रहा है, ये होता है फ्रैक्शन. व्हेन यू ट्रांसफर इट टू अदर साइड ये -4 ही रहेगा, क्योंकि दूसरी साइड जाके ये मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर. देखो जैसे यहाँ पे -4 + 2 है इक्वल टू 3 इक्वल टू 2. ठीक है, अब ये इससे क्या हो रहा है, -4 2 से क्या हो रहा है प्लस, तो ये दूसरा साइड जाएगा तो 2 इक्वल टू -4 बन जाएगा +4 तो 6 ऐसा हो जाएगा. बट अगर ये ऐसा हो रहा है -4 × 2 इज इक्वल टू 8, इफ दिस टाइम ये अगर उस साइड भेजोगे तुम तो 2 इक्वल टू 8, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे प्लस हो रहा था, तो यहाँ पे यहाँ प्लस हो रहा था, है कि नहीं, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा था, तो -4 दूसरी तरफ गया तो -4 +4 बन गया. यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो नंबर दूसरी तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई माइनस या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, डिवाइड होगा, और -4 जाएगा तो ये -4 ही रहेगा. ठीक है ना, यहाँ पे -4 दूसरी तरफ जाएगा तो -4 ही रहेगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है. प्लस या माइनस हो रहा होता तो ये इसका साइन चेंज हो जाता, जैसे यहाँ पे प्लस हो रहा था. ठीक है, अगर माइनस भी हो रहा था, इफ माइनस वॉज इफ दिस वॉज बिंग सब्ट्रैक्टेड 4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा. पर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा और -4 ही डिवाइड होगा. ठीक है, -4 × 2 -2 -4 × -2 +8 4 2 8 -+8. ठीक है ना. सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. दिस टाइम x को हमें फिर से वो करना है, आइसोलेट करना है कि नहीं. तो दिस टाइम व्हाट वी विल डू, वी विल ट्रांसफर x ऑन द अदर साइड. ठीक है, देखो ऐसे 32, इस बार दोनों इधर से उधर कर दो ट्रांसफर. 1 है ना, 1 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया न्यूमरेटर से, एंड -4 × x हो गया. बस ये लिखो, पर माइनस करना नहीं, मल्टीप्लाई करना नहीं. ये जाके ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 इज गोइंग टुवर्ड्स दिस साइड एंड इट्स गेटिंग मल्टीप्लाइड टू द न्यूमरेटर. डू नॉट मल्टीप्लाई, बस देखो. अब मैंने यहाँ पे क्या सिखाया था, जब मल्टीप्लाई होता है और दूसरी तरफ जाता है तो डिवाइड हो जाता है. -4 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, इट विल गो द अदर साइड एंड गेट डिवाइडेड. -32 × 2 इज 32 × 1 इज 32. x से मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था 2 से, दूसरी तरफ गया तो 8 से डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे 32 से क्या होगा 4 डिवाइड हो जाएगा और -4 ही रहेगा. ठीक है, x इक्वल टू 32/-2 -4. ठीक है, दिस वेंट दैट साइड एंड बिकेम इट्स डिनोमिनेटर. नाउ यू कैन कट इट. ठीक है, 4 2 से करो, चलो डू नॉट गेट कंफ्यूज. 2 माइनस का साइन रखो, इंटू 2 इज -4 और 2 कितना 2 16 × 32 और कटेगा ये -2 2 से करो, 2 × कितना -2 × ये 1 हो गया, -2 1 × -2. ठीक है, -2 × 1 इज -2, सब्ट्रैक्ट -+1 इक्वल टू -2, तो 1 तो हो गया. 16 कितना होगा बोलो, -2 × हाउ मच इज इक्वल टू 16, -2 × -8 इज इक्वल टू 16, क्योंकि माइनस प्लस एंड 2 × 8 इज 16 है ना, तो यहाँ पे -8 आएगा. ठीक है, सो x इक्वल टू -8. सिर्फ 8 लिखते तो गलत होता, देखो
-2 into 8 minus plus minus 8 to the 16 -16, बट यहाँ पे -16 तो नहीं है ना, है कि नहीं? -2 into 1 is -2, ये हो गया. -2 into -8 is 16. 8 is equal to -8. This is minus, ठीक है? It's very simple. Try question number 13, ठीक है? 1 and 4 I have done. Try question number 3, 4, 2, 3, 5, ठीक है? Rest we will do in the next class, ठीक है ना? Okay kids, that's it for today. Thank you very much.